Okay, dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about प्रेस राइटिंग और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से लिखी जाती है और इसके लिए क्या क्या रूल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना कंपलसरी है. So the very first thing is that its pronunciation. It is pronounced as pressy writing, and the definition of pressy, as it is given here, you can look at it: a concise summary of essential points, statements, or facts. Pressy means from the French word pressé, so it's like this pressy, right? No, that's the most important, and we should say that very critical topic too, because we need to understand what's a pressy writing. The very first thing is that we should read the passage when a given passage is given, or we should say that prescribed passage is there in our question paper. The very first and foremost thing is that we should read it thoroughly. We can say in general pressy is a short summary of a paragraph, but writing a pressy doesn't mean just making the paragraph short or select some words out of a main paragraph. Writing pressy requires an apt skill. An apt skill means it needs too much expertise in writing a pressy, but it is not, uh, whereas quite difficult. It is quite easy if you understand the rules and if you follow them. So you do not miss out a point and capture all the main essence are just in one single small paragraph. It's not an we should say that just putting some words out of a main paragraph and then we are going to write them together once again. It is something quite different. And summary writing, I think that is quite common topic to all of the students. We start writing summary of something from the very beginning of we should say that our secondary classes, 9, 10 classes you start. So but when we are talking about press writing, it's not actually the same thing that we do, exactly same thing that we do in our 9, 10 classes or even 6, 5th classes. That was a, we should say that a rough, or we should say that we should say that an initial way of writing the summary of a paragraph. But now when we are talking summary writing, we should say that on higher grades or higher level, it means that it needs to be concentrated. It needs a lot of focus. It needs a lot of concentration, because it is we should say that very critical, and it needs some specific rules to be understood for writing a pressy. So when we are talking about that, writing pressy requires an apt skill so that you do not miss out a point and capture all the main essence or gist in one single small paragraph without losing the main or important points of the paragraph. So main or important points of a paragraph are to be summed up, or we should say that to be written in the form of another paragraph. Therefore, for writing a passage, you need to follow a particular set of rules for writing a passage. Here are some rules. So we are now starting. The first and foremost point for the students is to read and reread the passage with full concentration and focus. यानी सबसे अहम और सबसे पहली चीज़ जो स्टूडेंट्स के लिए है, जब आप इसकी प्रेसी किसी भी गिवन पैसेज की, जो कि अनसीन पैसेज होता है, वो आपके पास आता है, तो आपने उसको थॉरोली पढ़ना होता है, उसको कंसंट्रेशन के साथ, फुल फोकस के साथ एक दफ़ा पढ़ें, दूसरी मरतबा पढ़ें, तीसरी मरतबा पढ़ें, इवन इससे ज़्यादा मरतबा भी आपको गो थ्रू करना पड़े तो आपने करना है, ताकि वो आपके कम्प्लीटली आप उसको अंडरस्टैंड करें कि उसमें लिखा हुआ क्या है. यानी उसकी अंडरस्टैंडिंग या एक तरह से कम्प्रीहेंशन डेवलप करना, ये सबसे पहला और सबसे अहम काम है. ये जब तक आप नहीं कर पाएंगे तब तक आप इससे आगे नेक्स्ट स्टेप में नहीं बढ़ पाएंगे. सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपने यही काम करना है कि उसको अच्छी तरह से पढ़ना है, गो थ्रू करना है. और जब आप उसको पढ़ते हैं तो उसमें से डेफिनेटली आपने
जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स बहुत सारे आपको मिलेंगे, यानी पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आपको इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, तो आप उसको एटलीस्ट ट्वाइस, थ्राइस और इवन 4 टाइम 5 टाइम आपने गो थ्रू करना होता है। इसीलिए एडवाइस किया जाता है कि ये प्रेसी राइटिंग जो है आप सेकंड लास्ट में अपने पेपर के, जब आप पेपर अटैम्प्ट कर रहे हो तो उसके सेकंड लास्ट नंबर पर इसको अटैम्प्ट करें, जिसमें आपने इसको थोड़ा अच्छा खासा टाइम देना होता है। उसके बाद ऐसे राइटिंग लिखें एंड पे। The passage may include some difficult vocabulary, right? Students should get the meaning of the difficult words by relating them to the words before and after those difficult words. They should get the context to understand the meaning or to go very close to the meaning of those words. सो मीनिंग डेफिनेटली आप सारे मीनिंग अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, तो उसका तरीका ये होता है कि आपने उसके कंटेक्चुअल वे में उनको अंडरस्टैंड करना होता है। उसके क्लोज, यानी उससे पहले जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं, उसके बाद जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं, उनको आपस में आपने क्या करना होता है, अंडरस्टैंड करना, उसको लिंक करना होता है, और एक तरह से आपने उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होती है कि ये जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं ये किस कॉन्टेक्स्ट में या किस पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ हुए हैं। तो इस तरह से आप एक ओवरऑल यानी पूरे पैराग्राफ के जो भी पैसेज आपको दिया जाता है उसको एक तरह से अंडरस्टैंड करने के काबिल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये, जब आप प्रेसी राइटिंग लिख रहे होते हैं तो उसमें सबसे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो भी वो भी यानी इससे पहले वालों से कम इम्पॉर्टेंट एट ऑल नहीं है, तो उसमें हम द सेकंड पॉइंट इज़ टू राइट द मेन पॉइंट्स ऑफ द पैसेज, यानी उसके जो मेन पॉइंट्स आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या ये मेन पॉइंट्स हैं कि इनके बगैर अगर पैराग्राफ लिखने वाला जिसने वो पैराग्राफ लिखा है कुछ बात कहना चाहे तो वो कंप्लीट नहीं होगी, रादर वो इनकम्प्लीट रहेगी। तो उसके मेन पॉइंट्स को आपने अपनी नोट आंसर शीट के ऊपर या नोटबुक में, एग्जाम्स की बात कर रहे हैं तो आंसर शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहेंगे, तो आंसर शीट पे एक रफ ड्राफ्ट ऊपर लिख के आपने उस पर नोट कर लेना है। A student must write the main or core points in the form of a rough draft. He should go through once again to keep the only important or key points in his draft. Such points may be noted by keeping some rules in mind. यानी अब जो important points आपने नोट करने हैं वो किस तरह से नोट करने हैं, यानी कौन कौन सी points important हो सकते हैं जब आप किसी unseen passage को पढ़ रहे होते हैं, after comprehending, after understanding that paragraph. एक्सप्लेनेटरी पॉइंट्स, क्लासेस, सेंटेंसेस मस्ट बी एक्सक्लूडेड, यानी बहुत मरतबा या आप कह सकते हैं कि जनरली आपको इसी तरह से मिलेगा कि एक सेंटेंस लिखा हुआ है, उसके आगे फिर उसके एक्सप्लेनेशन होगी या उसके एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड या एक्सप्लेनेटरी क्लासेस होंगे या सेंटेंसेस होंगे, यानी एक पॉइंट है, एक बात की गई है, उसको दोबारा अंडरस्टैंड करने के लिए उसको एक्सप्लेन किया गया, तो आप उसमें से जो एक्सप्लेनेटरी नोट्स होंगे या एक्सप्लेनेटरी सेंटेंसेस या क्लासेस इवन होंगे उनको आप स्किप करेंगे और आप वो पॉइंट्स नोट करेंगे जो आपको लगता है कि ये मेन पॉइंट्स हैं और इनमें मेन बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इन्वॉल्व नहीं है। उसके बाद फिर आप आएंगे सम डायरेक्ट स्पीच सेंटेंसेस आपको शायद मिले उस पैराग्राफ में, तो उनको आपने इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना होगा। मीन के आपने उनके पॉइंट्स बताने हैं, मीन एग्जैक्ट वही वर्ड्स यूज़ करना बिल्कुल भी नहीं। इफ़ देर आर टू मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ हिस्टोरिकल रेफरेंसेज आर अदर्स, यानी वहाँ पर कोई एग्जाम्पल्स हैं इस तरह के हिस्टोरिकल रेफरेंसेज हैं या कुछ और इस तरह की बहुत ज़्यादा टू मैनी एग्जाम्पल्स मेंशन की गई हैं, तो आप उसको देखें कि उनको आप स्किप कर दें। अगर बहुत ज़्यादा हैं तो उसमें से कुछ 2-3 या जो आपको लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, इनके बगैर उसका मीनिंग कन्वे नहीं हो गया, वो इंक्लूड कर लें। अगर कुछ एग्जाम्पल्स हैं और वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको लगता है कि वो जस्ट एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई गई हैं, तो उनको आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप आएंगे नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट ये होगा कि आप देखेंगे कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उनको अपने ऑर्डर में नोट करना है, मीन कि उनका ऑर्डर चेंज नहीं करना, मीन कि जो पॉइंट पहले है उसको पहले लिखेंगे और जो पॉइंट बाद में है उसको बाद में लिखेंगे, ताकि एक वो फ्लो में और ऑर्डर के अंडर जो है जब आप प्रेस लिखें तो वो भी उसी तरह से आए। Repetition of ideas must not be there, as it would create a bad impact and it will render Pressy as incomplete and bad. So रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। आप पॉइंट्स नोट करते हुए ये जहन में रखें कि अगर एक पॉइंट आपने लिखा है वो दोबारा कहीं पर आ रहा है तो उसको स्किप करें, या उसी पॉइंट्स के एग्जांपल्स आ रही हैं तो स्किप करें। आपने जस्ट मेन पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हों उनको आपने माइंड में रखना है।
राइट। सो उसके बाद फिर हम आते हैं नेक्स्ट की तरफ, और यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा। थर्ड पॉइंट्स क्या है कि जब आप उन पॉइंट्स को अपने पैराग्राफ में एक रफ ड्राफ्ट के फॉर्म में अपने आंसर शीट के ऊपर आप एक रफ ड्राफ्ट बना सकते हैं, वहाँ पे लिख लें। आफ्टर राइटिंग देम इन द फॉर्म ऑफ अ पैराग्राफ इन दैट, तो अब आपने क्या करना है कि उनको कनेक्ट करना होता है, यानी नेक्स्ट स्टेप जो है उनको आपस में कनेक्ट करना है, उनको जोड़ना है इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस टुगेदर। तो दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट क्रिटिकल स्टेप है, यानी हम इसको कहेंगे इसमें बहुत ज़्यादा केयर की, बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। इन अ प्रेसी राइटिंग is to connect the core or important ideas together. While connecting the ideas together, the logical connection between ideas, that is called coherence, and the syntactical or structural connection of sentences, that is called cohesion, must be obeyed. यानी हमने इस तरह से उनको कनेक्ट करना होता है कि जो डिफरेंट आइडियाज है वो आपस में कनेक्ट हो, आउट ऑफ कंटेक्स्ट कोई भी बात ना हो, और जब हम सेंटेंसेस को कनेक्ट करें तो कंजक्शन और इस तरह के फ्रेजेस यूज़ करके उनको सेंटेंसेस को आपस में फिजिकली भी कनेक्टेड वो नज़र आने चाहिए, ताकि उनमें एक रब्त, एक फ्लो क्रिएट हो उन तमाम सेंटेंसेस में जो वहाँ पर उसमें लिखते हैं हम। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फिर स्टूडेंट्स मस्ट यूज़ देयर ओन वोकैबुलरी। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि प्रेसी राइटिंग में वही वर्ड्स उठाकर जो पहले उन्होंने लिखे होते हैं या पैराग्राफ में लिखे होते हैं, उनको उठाकर उनको पिक करके दोबारा उसी तरह से प्रेसी राइटिंग में लिख देते हैं। अगरचे उन्होंने आइडियाज़ तो पिक किए होते हैं लेकिन वर्ड्स वही उठा रहे होते हैं, वही कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं, तो ये कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता। कॉपिंग एंड पेस्टिंग ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज इज नॉट अ प्रेसी राइटिंग एट ऑल, उसको प्रेसी राइटिंग में इंक्लूड ही नहीं किया जाता। उसके बाद फिर है पर्सन ऑफ द पैरासी शुड बी सेम एज ऑफ द पैसेज। अगर वो फर्स्ट पर्सन में है तो फर्स्ट पर्सन में लिखें, सेकंड में है तो सेकंड में लिखें, थर्ड में है तो थर्ड में लिखें। टेंस ऑफ द पैसेज शुड नॉट बी चेंज, यानी जो टेंस है उसमें उसी को फॉलो करें, वही टेंस उसी टेंस में लिखें। उसके बाद फिर इसी तरह से नेक्स्ट है लॉन्ग फ्रेजेस, यानी एक और पॉइंट जो है लॉन्ग फ्रेजेस स्पेशली रिलेटेड टू एडवर्ब्स और इस तरह की चीज़ें जो होती हैं उनको भी आपने स्किप कर देना है, उनकी जगह आप शॉर्ट फ्रेज आप स्किप कर सकते हैं, उनकी जगह आप उनको प्लेस कर सकते हैं शॉर्ट फ्रेजेस को। फॉर एग्जांपल अगर कहीं पर उसमें लिखा हुआ है कि 2 centuries अगो, तो आप उसकी जगह इन ओल्ड, इन पास्ट लिख सकते हैं, इन ओल्ड टाइम्स लिख सकते हैं, मतलब इस तरह के वर्ड्स एक तो चेंज भी कर सकते हैं और उनकी जगह शॉर्ट फॉर्म में उनको लेके आए। फ्रेजेस इस तरह के लगाएं जो शॉर्ट हों और जो लॉन्ग फ्रेजेस को रिप्लेस कर रहे हों, उनकी जगह मीनिंग वही कन्वे करें बट वो शॉर्ट फ्रेजेस हों। फिर हम आते हैं नेक्स्ट की तरफ कि इसमें ड्यूरिंग ऑल दैट प्रोसेस हमें ये भी माइंड में रखना चाहिए कि उनमें स्पेलिंग और ग्रामर की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको मार्क्स आपकी कटिंग होगी, मीन के आपको सीवियरली हम कह सकते हैं कि उसमें पनिशमेंट इन द फॉर्म ऑफ द कटिंग ऑफ मार्क्स दैट शुड बी। Commencing or explanatory phrases are remarks that are not originally a part of passage are strictly disallowed and prohibited in a press writing। यानी ऐसे कमेंट्री, यानी आप ये नहीं कह सकते द राइटर सेज दैट, या आप कह सकते हैं इन द व्यू ऑफ द राइटर, या इस तरह के फ्रेजेस अकॉर्डिंग टू द राइटर, अकॉर्डिंग टू द पैसेज राइटर, या इस तरह के वर्ड्स और फ्रेजेस अगर आप यूज़ करेंगे तो दैट विल बी रॉन्ग थिंग। यानी इसमें आपने एक्सप्लेनेशन के हिसाब से, कमेंट करने के हिसाब से, या इस तरह के जो रिमार्क्स होते हैं उनको बिल्कुल भी पुट नहीं करना, उनको इंसर्ट नहीं करना। अगर वो इंसर्ट करेंगे तो वो एक प्रेसी राइटिंग की जो स्पिरिट होती है वो ख़त्म हो जाती है। स्टूडेंट शुड अवॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड एब्रिविएशंस। और फिर नेक्स्ट पार्ट इसमें यह है कि आपने कॉन्ट्रैक्शंस यानी मुख्तसर अल्फाज या जो शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं उनको भी अवॉइड करें, क्योंकि एक प्रेसी राइटिंग की वो जो एक स्पिरिट है उसमें ये होता है कि वो बिल्कुल क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में लिखा हुआ होना चाहिए। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि प्रेसी जो है इस जनरली, हाँ ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कितनी होनी चाहिए उसके वर्ड्स लिमिट। वर्ड्स लिमिट्स आमतौर पर एक प्रेसी राइटिंग की ओरिजिनल पैराग्राफ जो है उसके 1/3 होनी चाहिए। मीन अगर ओरिजिनल पैराग्राफ 300 वर्ड्स में है तो आपका जो प्रेसी है दैट शुड बी इन 100 वर्ड, बट इवन मोर और लेस इट कैन बी, यानी 100% इसको हम फिक्स नहीं कर सकते, या ये नहीं कह सकते कि 300 है तो डेफिनेटली 100 ही होना चाहिए, 100 से लेस भी हो सकता है,
अगर थोड़े से 2 or 4 or 5 वर्ड्स ज़्यादा हो गए तो आप उसको शॉर्ट करने या इवन उसमें भी एक्सेप्टेबल है। एज हम एग्जैक्ट उनकी वर्डिंग डेफिनेटली काउंट नहीं की जाती, बट स्टिल एक आइडिया होता है कि ये पैसिव राइटिंग इसी तरह से होना चाहिए, रूल चाहिए। या इवन सम पीपल से दैट इट शुड बी लेस देन 1/3। आफ्टर कंपोजिंग अ पैसेज रिव्यू और गो थ्रू इट वंस अगेन, यानी इसको दोबारा से रिव्यू करें, दोबारा से देखें कि इसमें से कोई वर्ड्स, अगर आपके वर्ड्स लिमिट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है अकॉर्डिंग टू द सेट वर्ड्स लिमिट और जो रिक्वायर्ड वर्ड्स लिमिट है, तो आप उसको एक दफ़ा फिर से रिव्यू करें, देखें। और अगर आपको लगता है कि वो थोड़े से कम है रिक्वायर्ड वर्ड्स लिमिट से, तो इवन उसमें कोई इशू नहीं है, वो आप उसको कर सकते हैं। अगर उसमें ज़्यादा वर्ड्स लिमिट्स है तो फिर आप इस करें, आप उनको चेंज कर सकते हैं, यानी कुछ फ्रेजेस उसमें से स्किप कर दें। कुछ आइडियाज़ आपको लगता है कि ये 2 सेंटेंसेस में हमको इन अ सिंगल सेंटेंस आप इकट्ठा कर लें, तो इस तरह से करके उसमें से कुछ वर्ड्स मज़ीद आप स्किप कर सकते हैं। And finally, it must be written in neat and clean way without the inclusion of repetition, confusing statements, personal remarks or comments, copied and paste words। ये इसमें नहीं होने चाहिए, 100% नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये सारे जो है ये चीज़ें उसकी पैसिव राइटिंग की उसको ख़त्म कर देती हैं, स्पिरिट को। उसके बाद फिर हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इसमें ये होता है कि आपने एक टाइटल भी देना होता है। अब टाइटल के बारे में भी बहुत डिस्कशन होती है कि क्या टाइटल होना चाहिए। कोई भी टाइटल जो कि रेलेवेंट हो, उस पैराग्राफ में आपको पता चल रहा है कि ये इस टॉपिक को डिस्कस किया गया है, आप उसको लिख सकते हैं। बट दैट टॉपिक शुड बी इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रेज, सेंटेंस की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। बहुत लॉन्ग लेंथी फ्रेजेस भी अवॉइड करने चाहिए जब उसका आप टॉपिक लिख रहे हैं। तो सिंपली जस्ट आप उसको एक फ्रेज की फॉर्म में दें, राइट। सपोज अगर कोई पैराग्राफ एजुकेशन से रिलेटेड है, तो आप उसमें जस्ट एजुकेशन लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं एजुकेशन इज़ द स्पिरिट ऑफ ऑल वी शुड से दैट एक्टिविटीज़, इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन ये सेंटेंस बन जाएगा, तो उसको फिर आपने अवॉइड करना है, ठीक है। तो आपने कोशिश करना है एजुकेशन, आगे आप कॉमा लगा के लिख सकते हैं द स्पिरिट ऑफ ऑल एक्टिविटीज़। या फिर इस तरह से लिख सकते हैं एजुकेशन, खाली एक सिंगल वर्ड दे सकते हैं या फ्रेज दे सकते हैं, यानी सेंटेंस अगर देंगे तो वो रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा, उसको टाइटल कंसीडर नहीं किया जाता। तो टाइटल जो होता है आमतौर पर इंग्लिश पैराग्राफ में जो पैसेज दिया जाता है उसके स्टार्टिंग में ही आइडिया हो जाता है, स्टार्टिंग में ही वो टॉपिक सेंटेंस मौजूद होता है, या फिर आप उसको सेंटर में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टॉपिक या टाइटल सर्च आउट करना कोई ऐसा जितना डिफिकल्ट टास्क नहीं है, but you should keep in mind that it must be in the form of a phrase। the answer must। अब उसके बाद फिर एक दूसरा भी होता है कि उसमें आंसर्स भी आपको कहे जाते हैं कि क्वेश्चंस के आंसर्स भी आप लिखें। तो क्वेश्चंस के आंसर भी डेफिनेटली रेलिवेंट होने चाहिए उस पैराग्राफ से, जो पैसेज दिया गया आपको उसी पैसेज में से ही आपने आंसर करना होता है। आप उसमें अपने कमेंट्स या अपनी एक्सप्लेनेशन उसमें नहीं डाल सकते, बट यू शुड कीप इन माइंड दैट द वर्ड्स शुड बी योर ओन। अपने वर्ड्स होने चाहिए, उनके सिंपल वर्ड्स बेशक आप एक्वायर करें, बेशक डिफिकल्ट वर्ड्स एक्वायर करें, अदर देन द पैसेज दैट द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन द पैसेज। तो ये आमतौर पर इंटर के क्लासेस में 10 मार्क्स का पैसेज आता है, जिसमें से 5 मार्क्स जो है वो एग्जैक्टली प्रेसी के लिए यानी समरी के लिए होते हैं स्पेसिफाइड, और 1 मार्क टाइटल के लिए होता है 6 मार्क्स, और 4 मार्क्स के यानी 2 क्वेश्चंस 2 मार्क्स ईच वो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। समटाइम उसमें से आपसे ये पूछा जाता है कि जो गिवन पैसेज होता है उसमें से कुछ आपके वो क्या करते हैं, उनमें से कुछ आपके वर्ड्स आपको दे देते हैं, वर्ड्स या फ्रेजेस, और आपको कहते हैं कि उनके सिमिलर वर्ड्स या फ्रेजेस आउट ऑफ दैट पैराग्राफ आपने सर्च करने हैं। यानी एक क्वेश्चन इस तरह का होता है, या फिर ये पेपर सेटर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह के क्वेश्चन देता है। बहरहाल इसमें 2 क्वेश्चन होते हैं, यानी सिंपल क्वेश्चन है, उनके आंसर आपने करने होते हैं आउट ऑफ द पैराग्राफ, और फिर एक क्वेश्चन यानी थर्ड क्वेश्चन जो है वो प्रेसी राइटिंग का होता है, और उसके साथ ही एक टाइटल देना होता है, सूटेबल टाइटल सजेस्ट करना होता है। टाइटल भी आप क्वाइट ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जो भी टॉपिक को मीन रेलिवेंट होना चाहिए उस पैराग्राफ से, उसमें और ऐसा कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता। सो टुडे डियर स्टूडेंट्स वी डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज प्रेसी राइटिंग। तो प्रेसी राइटिंग
नाइन्थ टेंथ में भी की जाती है, इवन फिफ्थ सिक्स क्लासेस में भी स्टूडेंट्स प्रेस राइटिंग करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड समरी राइटिंग एट दैट लेवल. बट नाउ when you are a student of higher classes, especially inter classes or even more than this, it needs a lot of practice. तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप खुद से ये पैराग्राफ्स लेंगे, पैराग्राफ डिफरेंट प्लेसेस से लेकर आप खुद से उनके प्रेसी बनाएं, उसको देखें, रिलेट करें, और इस तरह से ये जो एक प्रेसी राइटिंग का एक प्रोसेस होता है, ये बहुत ज़्यादा ड्रिल या एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है इसके लिए, तब जाकर इसमें आप एक्सपर्ट होते हैं या यू एक्वायर एन एप्ट स्किल. I hope that all of you have understood what's a press writing. In the next lecture, we shall discuss some specimen paragraphs of, we should say that for press writing, and then we'll come to know what's an actual press writing. This was actually meant for writing a pressy, steps for writing a pressy.